Hello everyone. In this video, we'll be learning about cybercrime. What is cybercrime? तो इस वीडियो में हम लोग वो देखेंगे. ठीक है. So next 3 videos will be related to cybercrime only. So criminal activities or offenses carried out in digital environment can be considered as a cybercrime. मतलब कोई भी criminal activity है या कोई offense हुआ है digital environment पे, that means computers को लेके, mobile phones को लेके, then that will come under your cyber crime category. So let's move further. So let's see cyber crime आगे further में. So criminal activities or offenses carried out in digital environment can be considered as cyber crime. In such crimes, either the computer itself is the target or the computer is used as a tool to commit a crime. So यहाँ पे कंप्यूटर खुद एक टारगेट हो सकता है या कंप्यूटर को यूज करके वो क्राइम किया गया है. Okay. Now, cyber crimes are carried out against either an individual or a group or an organization or even against a country also with the intent to directly or indirectly cause physical harm, financial loss or mental harassment. तो जो हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल के ऊपर हो सकते हैं या ग्रुप हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो सकते हैं या इवन कंट्री के ऊपर भी हो सकते हैं और उनका मेन मकसद होता है इधर मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई फिजिकल हार्म पहुंचाना या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस करवाना या मेंटल हैरासमेंट करवाना. साइबर क्रिमिनल अटैक्स अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क टू रीच अदर कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू डिसेबल और डैमेज डाटा और सर्विसेज. तो यहाँ पे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अटैक करते हैं कंप्यूटर या फिर इवन नेटवर्क को. नेटवर्क होता है मतलब कि जहाँ पे कंप्यूटर हमारा है एज अ पार्ट, ताकि वो दूसरे कंप्यूटर पे रीच कर सके सो दैट वो उसके डाटा को चोरी कर सके या डैमेज कर सके या डिसेबल कर सके. अपार्ट फ्रॉम दिस, अ साइबर क्रिमिनल मे स्प्रेड इवन वायरसेस एंड अदर malwares. So we'll also learn about what are viruses and malwares in order to steal private and confidential data for blackmailing and extortion. So all these comes under your cyber crime. Now let's see what are virus and what are malwares. So what is virus? A computer virus is some lines of malicious code. मतलब है वैसे वो कोडिंग ही, लेकिन उसका मेन काम होता है आपके डाटा को डिस्ट्रॉय करना या फिर आपके डाटा को करप्ट करना. मतलब आपके पास जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या फिर वो करप्ट हो जाएंगी सो दैट यू कैन नॉट यूज इट. सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दोज malicious कोड. ठीक है. So a computer virus is some lines of malicious code that can copy itself and can have detrimental effect on the computers by destroying data or corrupting the system. So let's see what is malware. So malware is a software designed to specifically gain unauthorized access. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है पूरा या फिर उसको करप्ट कर देता है, लेकिन malware उस डाटा को करप्ट या डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, वो आपके सिस्टम में एंटर करता है और फिर आपके डाटा को वो चोरी करने की कोशिश करता है, स्टील करने की चोरी करता है. ठीक है. सो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज बेसिकली योर malware. Whereas when the software is designed or the code is designed to destroy your data or corrupt your data, then that is basically your viruses. Okay. So let's move to the next slide. So these are some of the examples of cyber crimes. The nature of criminal activities are alarmingly increasing day by day with frequent reports of hacking. These are some examples of cyber crimes. Hacking होती है, ransomware attack होते हैं, we'll learn about ransomware attack in detail. Denial of service है, phishing है, email fraud है, banking fraud है या फिर even identity theft है. तो इसमें से कुछ हम जो examples अभी हम लोगों ने देखे हैं we'll study about those in detail in the next section. So cyber crimes, following us some of the cyber crimes. So we'll study about these 3, that is hacking, phishing and fraud emails और ransomware के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं as per your syllabus of class 12th. Okay. So what is hacking? So hacking is the act of unauthorized access to a computer और कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम. मतलब अनऑथराइज तरीके से आपके कंप्यूटर में अगर कोई एंटर कर जाता है आपके कंप्यूटर नेटवर्क में या आपके डिजिटल सिस्टम में, देन दैट इज हैकिंग. सो हैकर्स के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो उनके पास
वो नॉलेज होती है कि वो हार्डवेयर को भी जानते हैं और सॉफ्टवेयर दोनों को जानते हैं. दे लुक फॉर बग्स टू एक्सप्लॉइट एंड ब्रेक इनटू द सिस्टम. तो वो इनको ढूंढते रहते हैं कि ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम उसमें एंटर कर सकें या नहीं. सो वो इन बग्स को एक बार ढूंढ लेते हैं, देन दे कैन ईजिली एंटर इनटू द सिस्टम. सो दे आर टू टाइप्स ऑफ हैकिंग. दे दो तरीके की हैकिंग होती है, एथिकल और नॉन एथिकल हैकिंग. सो लेट्स सी व्हाट इज एथिकल हैकिंग एंड व्हाट इज नॉन एथिकल हैकिंग. सो एथिकल हैकिंग as the term implies, they are also known as white hat hacker. ठीक है, अगर आपकी कोई पिक्चर है हैकर की एंड इफ यू सी अ वाइट हैट अबाउट द हैकर, देन दैट इज वो एथिकल हैकर है. सो हैकिंग व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंट, अगर हैकिंग हम पॉजिटिव इंटेंट से कर रहे हैं, देन दैट इज बेसिकली योर then that is known as your ethical hacker is called an ethical hacking. Such ethical hackers are known as white hat hackers. They are specialists in exploring any vulnerability or loophole by during testing of the software. Now, thus they help in improving the security of the software. उनको वो स्पेशलिस्ट होते हैं कि आपके सिस्टम में कोई लूप होल है और वो लूप होल को वो ढूंढते हैं और उस लूप होल के थ्रू एंटर करते हैं. जब वो एंटर कर जाते हैं तो उनको पता है कि यहाँ पे लूप होल है, तो उसको प्लग इन करने की कोशिश करते हैं. तो इससे क्या होती है कि हमारे सॉफ्टवेयर और ज़्यादा सिक्योर बन जाता है. ठीक है, तो वो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर को और सिक्योर बनाने में. वो एंटर तो कर रहे हैं, लेकिन एंटर एक पॉजिटिव इंटेंट से कर रहे हैं सो दैट दे कैन मेक दैट सॉफ्टवेयर मोर सिक्योर. An ethical hacker may exploit a website in order to discover its security loopholes or vulnerability. He then reports his findings to the website owner. For example, I can hack Facebook. अगर मैं मतलब Facebook के अंदर देखता हूँ कि कोई लूप होल है जहाँ से मैं एंटर कर सकता हूँ Facebook के सर्वर पे, then I can report if I'm an ethical hacker. Then after entering, I can just email Facebook कि भाई यहाँ पे आपके ये लूप होल्स हैं. Then वो उसको प्लग इन कर देंगे सो दैट नोबडी एल्स कैन एंटर थ्रू दैट पर्टिकुलर बग और लूप होल. सो दस एथिकल हैकिंग इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग द ओनर अगेंस्ट एनी साइबर अटैक. तो वो उसको बचाता है एनी फ्यूचर साइबर अटैक से, जो एथिकल हैकर होता है. ठीक है, सो अगर पॉजिटिव इंटेंट से हैकिंग की जाए, सिस्टम एंटर किया जाए, देन दैट इज योर वाइट हैट हैकर या फिर एथिकल हैकर. नेक्स्ट इज योर नॉन एथिकल हैकर, जिसको हम लोग ब्लैक हैट हैकर भी बोलते हैं या उनको क्रैकर्स भी बोलते हैं हम लोग कई बार. सो वी कॉल देम एज क्रैकर्स और वी ऑल्सो कॉल देम एज ब्लैक हैट हैकर. सो अ नॉन एथिकल हैकर इज द वन हु ट्राइज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स और नेटवर्क इन ऑर्डर टू स्टील सेंसिटिव डाटा विद एन इंटेंट टू डैमेज और ब्रिंग डाउन सिस्टम. दे आर कॉल्ड ब्लैक हैट हैकर्स और क्रैकर्स. मतलब कि उनका हरदम नेगेटिव इंटेंट होता है कि हम उससे पैसे निकाल सकते हैं, हम ठीक है, हम उनको हार्म पहुंचा सकते हैं कुछ. ठीक है, सो ये इंटेंट से अगर हम हैकिंग कर रहे हैं, देन दैट वी कॉल देम एज नॉन एथिकल हैकर्स. नाउ देयर प्राइमरी फोकस इज ऑन सिक्योरिटी क्रैकिंग एंड डाटा स्टीलिंग. तो उनका मेन पर्पस होता है डाटा को चोरी करना और सिक्योरिटी को ब्रेक डाउन करना. दे यूज देयर स्किल फॉर इलीगल और मेलिशियस पर्पसेस. सच हैकर्स ट्राई टू ब्रेक थ्रू सिस्टम सिक्योरिटीज फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट. ओके, विल सी फ्यूचर में अभी आएगा हमारे पास टॉपिक ये, व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट. देन इज मॉनिटरी गेन टू ब्रिंग अ कॉम्पिटिटर राइवल साइड डाउन टू लीक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एटसेट्रा. दैट मीन्स उनके सारे नेगेटिव इंटेंट्स हैं विद द डाटा दैट दे हैव स्टोलन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. सो नेक्स्ट इज योर फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स. सो व्हाट इज फिशिंग या फिर फ्रॉड ईमेल्स? नाउ, phishing is an unlawful activity where fake websites or emails that look original or authentic are presented to the user to fraudulently collect sensitive information या personal details, particularly username, password, banking and credit card detail. तो आजकल if you, for example, you get an email and it asks you कि that your email will be blocked, so please reset your password. You click on that और वो एक और Gmail का पेज ओपन हो गया. बट वो जीमेल का एक्चुअल पेज नहीं है, वो फेक वेबसाइट है जीमेल की. एंड यू एंटर योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, देन दैट फेक वेबसाइट विल कैप्चर योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड दे कैन मिसयूज दैट. सो दैट मीन्स यू फेल इनटू अ ट्रैप. एक ईमेल आया, उस ईमेल के ट्रैप में आप फंस गए और आपने उसके लिंक पे क्लिक किया
और वो लिंक से आप एक फेक वेबसाइट पे पहुंच गए और फिर वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो. सो दिस इज समथिंग नोन एज ईमेल स्पूफिंग. So the most common phishing method is through email spoofing, where a fake or forged email address is used and the user presumes it to be from an authentic source. So email spoofing, you might get an email from an address that looks similar to your bank or educational institution asking for your information. But if you look carefully, you will see their URL address is fake. They will often use logos of the original, making them difficult to detect from the real. सो फेक वेबसाइट आएगी लेकिन लगेगी ऐसे कि ओरिजिनल है, बट इफ़ यू लुक टूवर्ड्स द एड्रेस यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. नाउ फिशिंग अटेम्प्ट्स थ्रू फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस आर ऑल्सो कॉमन दीज डेज. तो जैसे ईमेल स्पूफिंग है वैसे ही SMS स्पूफिंग भी आ गई है, वैसे ही व्हाट्सएप स्पूफिंग भी आ गई है, इवन फ़ोन कॉल्स स्पूफिंग भी होने लगी है. फ़ोन कॉल स्पूफिंग का मतलब है फ़ोन के थ्रू आपके पास कॉल आएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, यू हैव टू renew your card, and in that it will ask for some vital information and you'll provide that. That is also your kind of a spoofing. तो बहुत सारे different kinds of spoofing आज की डेट में हैं possible. Next is your identity theft. So what is an identity theft? So identity thieves increasingly use personal information stolen from computers or computer networks to commit fraud by using the data gained unlawfully. This is one type of phishing attack where the intention is largely for monetary gain. Now एग्जाम्पल देता हूँ आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या हुआ. आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो उनके पास है, ठीक है, उसको वो मिसयूज़ कर सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को to actually have some monetary gain. ठीक है. So a user's identifiable personal data like demographic detail का मतलब होता है आपका घर का एड्रेस, ठीक है, आपका पिन कोड, ये सारी डेमोग्राफिक डिटेल्स में आते हैं. आपके सिटी, स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, पासपोर्ट, पैन, आधार नंबर एंड वेरियस सच पर्सनल डाटा आर स्टोलन एंड मिसयूज्ड बाय द हैकर ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम. ओके, सो दे कैन यूज़ योर आधार नंबर, उससे वो कुछ नई चीज़ परचेज कर लेंगे, नई सिम परचेज कर सकते हैं मे बी, एंड दे कैन मिस यूज़ दैट. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन आइडेंटिटी थेफ्ट. नाउ देयर कैन बी मेनी वेज इन विच द क्रिमिनल टेक्स एडवांटेज ऑफ एन इंडिविजुअल स्टोलन आइडेंटिटी. गिवन बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स. Financial identity theft, when the stolen identity is used for financial gain. Okay, stolen identity is used for financial gain. मतलब जो आपकी आइडेंटिटी है उससे उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, then that is known as your financial gain. Then is criminal identity theft. Criminals use a victim's stolen identity to avoid detection of their true identity. For example, they can use your कार नंबर, ठीक है, और वो अपने कार पे लगा देंगे एंड वो आपकी जो स्टोलन आइडेंटिटी है वो उससे वो बच जाएंगे, ठीक है, लेकिन पुलिस आपको पकड़ेगी कि भी आपकी गाड़ी का नंबर उसमें पाया गया है इस क्राइम के अंदर. सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी थेफ्ट वेयर द विक्टिम स्टोलन आइडेंटिटी इज बीइंग यूज्ड बाय द क्रिमिनल्स टू अवॉइड देयर डिटेक्शन. देन इज मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट. So criminals can seek medical drugs or treatment using a stolen identity. That means अगर किसी डॉक्टर ने किसी को एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है लेकिन सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही अवेलेबल है मेडिसिन, तो उस प्रिस्क्रिप्शन को अगर कोई चोरी कर लेता है तो उससे कोई दूसरा बंदा जिसको अलाउड नहीं है वो मेडिसिन लेना, तो वो भी उसको परचेज कर सकता है ड्रग स्टोर से या केमिस्ट से नॉर्मली, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली योर आइडेंटिटी थेफ्ट. सो आइडेंटिटी थेफ्ट के कुछ एग्जांपल हमने देखे, फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट और मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट. नाउ नेक्स्ट इज योर ransomware. So this is a very frequent attack nowadays to gain some monetary benefit. So this is another kind of cyber crime where the attackers gain access to the computer and blocks the user from accessing, यूजुअली बाय इनक्रिप्टिंग द डाटा. दैट मीन्स वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं और हमारी जितनी भी फाइल्स होंगी उन सारी फाइल्स के अंदर एक तरह से उनको इनक्रिप्ट कर देंगे. मतलब
उसको अब वही उसको ठीक कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं. The attacker blackmails the victim to pay for getting access to the data or sometimes threatens to publish personal and sensitive information or photographs unless a ransom is paid. तो अभी जैसे एम्स के सर्वर्स पे हुआ था, तो एम्स के सर्वर पे क्या हुआ कि सारा का सारा डाटा जो है इनक्रिप्ट हो गया, nobody can use it. And then the government received an email कि we need this much number of crores rupees in cryptocurrencies. Though the government did not give and got the data back themselves with the help of the software engineers, but this is a kind of the attack. So ransomware में when the people ask for some kind of the money to give back their original data, और या फिर इवन ब्लैकमेल भी करते हैं लोगों को कि विल मेक दिस डाटा एज पब्लिक. So ransomware can get downloaded when the users visit any malicious or unsecure website or download software from doubtful repositories. Some ransomware are sent as email attachment. तो ज़्यादातर ransomware जो है, अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसके थ्रू आ सकता है, हमने कोई ईमेल अटैचमेंट ओपन किया उसके थ्रू आ सकता है. इट कैन ऑल्सो रीच अ सिस्टम व्हेन वी क्लिक ऑन मेलिशियस एडवर्टीजमेंट, मतलब कोई ऐड आ रही है, उस ऐड पे क्लिक किया तो उसके थ्रू भी हमारा रैंसमवेयर हमारे सिस्टम के अंदर आ सकता है. सो वी कैन गेट अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द रैंसमवेयर बाय इंस्टॉलिंग अ वेरी गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स. So in the next video, we'll learn about how we can combat these cyber crimes. Okay, so thank you for this particular video. Thank you.